Hello everyone, myself Aishwarya Sharma. After 5 years as a principal, I am now bringing my expertise to you through a free YouTube based mathematics study resource and training program. This program is perfect for students from class 3rd to 12th, for all the teachers who are teaching in the schools and want to expand their learning, and for all of the students who are preparing for the competitive exams. My goal is simple: to help you master math. Watch all the videos, they are completely free and incredibly beneficial. Start your journey to mathematical excellence today. So, here let's start with the lecture number first, and we will be going to talk about the concept of zero. So the videos will be in English language also and in Hindi also. But I feel because we are living in India and we should know Hindi as well because it's our national language. So all of the students who understand Hindi and who speaks in Hindi, they they try and they understand all the concepts really easily in Hindi more than English. So I'm going to teach you in both of the languages. So here, as we will be going to talk about the concept of zero, before this, agar aapko yaad ho, if you remember, about once the interview happened in UPSC, the UPSC interview was there. There, w- one ma'am asked the question that who invented zero. What was the question? That who invented zero? Okay. So there were the two things happened, like the man given the answer, and there was the debate between invention and the discovery. So today we will be going to talk about that what is the term invention and what is the term discovery and what is the correct word. Okay, so here the concept of zero and the development of various number system is fascinating journey through human history. So today we will be going to learn about the concept of zero according to the human history. Okay, so who was the early placeholders in ancient civilization like the Babylonians used symbols as placeholders. Okay, so who were the placeholders? Ancient civilization. Okay, like in this civilization they were using it as a symbol, okay, in their numerical system. This was a precursor to our modern zero. Then from this we understood, and from this civilization we took zero to the modern zero. That means जो एंशियंट प्लेस होल्डर अर्ली प्लेस होल्डर अगर हम बात करें कि सबसे पहले जीरो कहाँ से हमें पता चला और हमने कैसे डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये जो इन्वेंशन वाली बात होती है ना, इन्वेंशन मतलब होता है कि आविष्कार करना किसी चीज का, एंड डिस्कवरी मतलब होता है खोज करना। तो वी हैव डिस्कवर्ड जीरो। Okay, so who discovered zero? So it is Aryabhat. Aryabhat discovered zero from Babylonians ancient civilization. Okay, and वहां से भी फिर discover हुआ and then फिर distribute हुआ. So this we have to understand. Okay, so क्या हुआ कि हमें मॉडर्न जीरो मिला एंड दे नीडेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, एंड फिर हम डिस्टिंग्विश करने लगे बिटवीन 1 and 10, मतलब उन्हें इसके और इसके बीच में डिस्टिंग्विश करने में जो था, they had they were not having any clue about it. So then what is the India's contribution? Ancient India played a crucial role in establishing zero as a number in its own right. Okay, so how, अभी देखो क्या हुआ ना कि हमें एज अ नंबर हमें नहीं पता था, तो आर्यभट्ट ने क्या किया, अराउंड द 5th century CE he contributed to the development of the decimal system. ठीक है, सो आर्यभट्ट अपने जो एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशंस करते थे उसमें वो जीरो का यूज करते थे और वो डेसिमल सिस्टम का भी यूज करते थे, ठीक है। सो विच रियलाइज हैवीली ऑन जीरो, जो कि डेसिमल सिस्टम जो है वो किस पर रिलाई करता है, जीरो पर। ओके, सो आर्यभट्ट अराउंड द 5th century, तो आपको ये भी याद रखना है कि कब आर्यभट्ट
किस सेंचुरी के टाइम पर ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो वहां पर दे डेवलप द डेसिमल सिस्टम विच रिलाइज हेवली ऑन जीरो। ओके, तो हमने डिस्कवर किया जीरो को कहाँ से, व्हेन आर्यभट्ट वाज यूजिंग जीरो इन हिज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। फिर ब्रह्मगुप्ता ने क्या किया, अभी आपको ये समझना है कि आर्यभट्टा ने तो 5th सेंचुरी सीई में जो है वो हमें बताया कि डेसिमल सिस्टम था, तो डेसिमल सिस्टम जो है जीरो पर ज्यादा डिपेंड करता था। फिर ब्रह्मगुप्त ने 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में ये जो रूल्स बनाए, जीरो के ऊपर रूल्स बनाए, जैसे आपने देखा है ना कि 1 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे, ठीक है, लाइक 1 प्लस जीरो वुड बी 1, 1 माइनस जीरो वुड बी 1, लाइक दिस। से जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जो रूल्स थे ना, वो किन्होंने बनाया, ब्रह्मगुप्ता ने। और उन्होंने इसे कहाँ लिखा, ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत, ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत में लिखा। दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद में अब ये जो शून्य है, द कंसेप्ट ऑफ शून्य, in which the meaning in Sanskrit which means void or nothing, जिसका क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं, ठीक है। सो was central to this development। फिर हमें इसका डेवलपमेंट बहुत ही इजीली, जीरो क्यों हमें चाहिए था वो हमें पता चला, ठीक है। अभी इसका स्प्रेड किसने किया और अडॉप्ट किसने किया, तो अच्छा, यहाँ से तो हमें ये समझ में आया कि पहले क्या होता था, ह्यूमन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी चीज उन्हें नहीं पता थी कि मुझे नहीं, अगर कोई चीज नहीं है तो उसको मैं मेंशन कैसे कर सकते हैं, हम उसको नोट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम उसके लिख सकते हैं कि वो जीरो है, ठीक है। सो वो हमें बाद में when we got to know about the astronomical calculations of Aryabhat, we discovered zero, and then फिर हमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन ब्रह्मगुप्त ने 7th सेंचुरी में दिए। उसके बाद अब इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एशियन इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल। ये आपने समझ लिया कि उन्होंने जीरो को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इसको स्प्रेड कैसे किया, ठीक है, डिस्कवर कर लिया, फिर स्प्रेड किया। सो जो जीरो का कंसेप्ट है वो स्प्रेड हुआ इंडिया से इस्लामिक वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया से इस्लामिक वर्ल्ड में, वेयर स्कॉलर्स लाइक एल ख्वारिज्मी हेल्प्ड पॉपुलराइज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। तो ये जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम था, जो कि फॉर श्योर आर्यभट्ट ने ही डिस्कवर किया है, वो वहाँ वो वाला जो कंसेप्ट था पूरा, हमारा जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम था, वो फिर इस्लामिक वर्ल्ड में गया, और फिर इस्लामिक वर्ल्ड से फिर बोन्नेकी ने इस हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को इंक्लूडिंग जीरो यूरोप में स्प्रेड किया 13th सेंचुरी में। तो आप समझ रहे हो कि जीरो 5th सेंचुरी से फिर 7th सेंचुरी, फिर धीरे 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 कर करके 13th सेंचुरी में वो स्प्रेड हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया। अभी हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जीरो की क्या जरूरत थी, व्हाई, व्हाट्स द नीड ऑफ जीरो, ओके, व्हाई वी डिड इट, है ना, व्हाट्स द नीड ऑफ जीरो। सो जीरो के लिए एक बहुत ही बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग हम सभी ने सुना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सो व्हाट्स द रीजन कि हमने जीरो का इन्वेंशन क्यों किया, इन्वेंशन मीन्स डिस्कवरी क्यों की, वी विल टॉक अबाउट डिस्कवरी, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जब ये डेसिमल सिस्टम जो आया वो पूरा जीरो के ऊपर रिलाई करता था, और अगर हमारे पास जीरो नहीं होता तो हम चांद से धरती की दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, हम अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू नहीं बता सकते थे। सो दैट्स व्हाई द जीरो वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां हमने जीरो के बारे में सुना और जीरो के बारे में पढ़ा। एंड हियर आई एम गोइंग टू आस्क वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू, दैट व्हेन वी यूज मेहंदी, जब हम मेहंदी लगाते हैं, ये भी एक यूपीएससी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, और यूपीएससी के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही रेयर क्वेश्चंस है, ठीक है, वो दैट आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर इन माय वीडियोस। सो
Please listen to the complete video. You will find a lot of questions between the videos also. So just let me know, when you use mehndi on your hand, what are the chemicals we react with our skin, तो हमको वो कलर मिलता है मेहंदी लगाने के बाद में. We get that color. How we get that color on our hands? किन केमिकल्स के कारण हमें वो मेहंदी लगाने से कलर मिलता है? दिस इज द क्वेश्चन. आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, एंड मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like the video, please subscribe, share, and press the bell icon. Thank you so much.